Hello everyone. We have completed material variances. Now start with the labor variances. In material variances, we form 4 columns, and in labor variances we have to create 5 columns. Okay, compulsory 5 columns we have to make. Okay, start with first column. First column is actual hours into actual rate. Okay, AH actual hours into actual rate. Second column is actual hours into standard rate. Okay, but we have to remember that before deducting idle time, if in the sum idle time is given, now idle time is, what does it means? Idle time means the time period for that workers are not working. Okay, so free time period, we can say like that, free idle time. So actual hours into standard rate, second and third column both are the same, actual hours and the standard rate, but in the calculation of actual hours, first we do not deduct the idle time, but in third, if idle time is given, then we deduct the idle time, and after that we consider actual hours. Okay, actual hours after deducting idle time. Okay, fourth one is revised standard hours into standard rate. Similarly, in material revised standard material we calculated, and similarly in the labor variance we have to calculate revised standard hours, and mention that if there is a more than one type of labor, then only we do this column. Okay, and the last one is the standard hours for the actual production multiplied by standard rate, or actual production unit multiplied by standard price per unit. This formula is useful in MCOM. Now for the TY-BCom we have to consider this formula only, standard hours for actual production multiplied by standard rate. Okay, 5 columns we must prepare for the labor variances. Okay, now variances. Okay, first of all, main variance is a labor cost variance. Okay, now it is divided into 3 parts, that is a labor rate variance, labor efficiency variance, and labor idle time variance. And labor efficiency variance is divided into the 2 parts, labor mix variance and labor yield variance. अगर हमें देखना है हमारा सम सही है कि नहीं, तो labor mix variance plus labor yield variance, the answer will be the labor efficiency variance. And labor rate variance, labor efficiency variance, and labor idle time variance is equal to labor cost variance. Okay, now how we will find labor cost variance? So labor cost variance is equal to 5 minus 1. That means column number 5, answer of the column number 5 minus answer of the column number 1. Okay, second one is labor rate variance. Labor rate variance means column number 2 minus column number 1. Okay, third column is labor efficiency variance. Labor efficiency variance, that means I have written here 5 minus 3 or 5 minus 2. Okay, in some sums there is a 5 minus 3 or 5 minus 2, क्योंकि कई समों में ऐसा दिया होगा कि आइडल टाइम होगा ही नहीं, तो थर्ड कॉलम हम बनाएंगे ही नहीं. अगर थर्ड कॉलम नहीं बनती है तो हम चूज़ करेंगे 5 माइनस 2, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी वी हैव टू डू 5 माइनस 3. अगर 3 नहीं है तो ही हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, वरना 5 माइनस 3 ही करेंगे. ओके, सो देयर इज हियर इज़ द ऑप्शन 5 माइनस 3 और 5 माइनस 2. अगर थर्ड कॉलम नहीं बनाई है तो ही हम 2 का यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट लेबर आइडल टाइम वेरियंस. लेबर आइडल टाइम वेरियंस इज 3 minus 2, column number 3 minus column number 2. After that, labor mix variance. Labor mix variance is 4 minus 3 or 4 minus 2. Similarly, अगर थर्ड कॉलम बनी है तो हम 4 minus 3 ही करेंगे. अगर थर्ड कॉलम नहीं बनी है तो हम 4 minus 2 करेंगे. Okay. Last one is the labor yield variance, or other name of this is a labor sub efficiency variance. Okay, labor yield variance is equal to 5 minus 4. So column number 5 minus column number 4. So it is the basic for the labor variances. Okay, write down all these in your book. Okay, and remember all these 5 columns and the name of these variances.
एंड फॉर दैट अगर आपको आपका आंसर चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आप ये भी चार्ट याद रख लें कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 30। ओके, पेज नंबर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से हम कॉलम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री इज़ फॉलो। डेटा हमको दिया गया है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 2, एक्चुअल वेजेस पेड पर आवर 2.20, स्टैंडर्ड आवर्स 1500 एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड 1600. You are required to compute the labor variances. In this sum there is no information about the idle time, so we do not create column number 3. ओके, जैसे हम मटेरियल वेरिएंस में करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले डेटा को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कितना पार्ट हमें स्टैंडर्ड का दिया है और कितना पार्ट हमें एक्चुअल का दिया है। सो तो हमें आउटपुट के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हम आउटपुट कितना ले लेंगे, स्टैंडर्ड में भी एक लेंगे और एक्चुअल में भी एक लेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स हमें दे दिए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इज़ 500 एंड एक्चुअल आवर्स इज़ 1600 एंड रेट पर आवर है स्टैंडर्ड 2 एंड एक्चुअल 2.20. ओके, नाउ स्टार्ट विद द कॉलम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कॉलम्स वी मेड. एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट. Actual hour is 1600 and actual rate is 2.20. So actual hour into actual rate. Second column, actual hours multiplied by standard rate. We always remember that before deducting idle time. BDIT, what does it means? Before deducting idle time. Okay? Idle time दिया ही नहीं है, अगर दिया होगा तो भी हम idle. थर्ड कॉलम है एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट. एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट बट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम. पर इस सब में हमारे पास आइडल टाइम दिया ही नहीं है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. फोर्थ कॉलम है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट. रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा वर्कर की इन्फॉर्मेशन होगी, पर अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्कर की इन्फॉर्मेशन है यहाँ, तो हम ये फोर्थ कॉलम भी नहीं बनाएंगे. और फिफ्थ है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट्स. जैसे हम स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड करते थे मटेरियल वेरिएंस में, एज इट इज़ हमें यहाँ मटेरियल की जगह आवर्स काउंट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. आउटपुट कितना दिया है, 1 है, और उसके लिए हम आवर्स कितने चाहिए, 1500. तो अगर 1 है तो 1500 आवर्स चाहिए. तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो सामने आवर्स भी कितने चाहिए होंगे, तो 1500. ज़रूरी नहीं हर बार आउटपुट दोनों का सेम टू सेम ही हो. ओके, स्टार्ट विद द वेरिएंसेस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस. सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा 5 माइनस 1, 3000 माइनस 3520 माइनस 520 अनफेवरेबल. सेकेंड लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस इन द मीन्स 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 में क्या करेंगे, 2 है 3200, 1 है 3520 आएगा 320 अनफेवरेबल. ओके, उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस 5 माइनस 3, अगर 3 नहीं है तो 5 माइनस 2. ओके, तो 5 माइनस 3 तो हम कर नहीं सकते, 3 हमारे पास है नहीं, तो 5 माइनस 2, 3000 माइनस 3200 माइनस 200 अनफेवरेबल. उसके बाद वेरिएंस आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस. बट आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 3 माइनस 2. हमारे पास थर्ड कॉलम ही नहीं है तो हम आइडल टाइम वेरिएंस फाइंड नहीं कर सकते. उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस के हमने 2 पार्ट बताए थे. ओके, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस. मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, और 3 नहीं है तो 4 माइनस 2, पर हमारे पास 4 ही नहीं है तो हम वो वेरिएंस भी काउंट नहीं कर सकते. और लास्ट में है लेबर यील्ड वेरिएंस. उसका फॉर्मूला है 5 माइनस 4, और हमारे पास कॉलम 5 है पर 4 कॉलम नहीं है तो हम लेबर यील्ड वेरिएंस भी फाइंड नहीं कर सकते.
ओके, तो ये सब में हम सिर्फ 3 ही वेरिएंसेस काउंट कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट, रेट एंड एफिशिएंसी, बिकॉज हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ये दिस इज़ द सिंपल सम।